Welcome back, students. For our next class, already two questions we have covered. Now we have to cover the third question of our accounting equation. See, third question. Show the effect of the following transaction in the accounting equation. Started business with cash rupees 50,000. 3N outcome method. This is the method what we are following. Serial number 1. Started business with cash rupees 50,000. Now you tell me, what is coming into your business? Cash. Cash is coming into our business. How much? 50,000. That means cash is increasing. Yes, cash is increasing. Is this cash belongs to you? No. This cash is with you, but you have to repay this cash at the time of closure. So this is your internal liability. That means capital 50,000. Is your internal liability is increasing? Yes, our internal liability is increasing. So that's why 50,000 positive. Now, what is the effect on your external liability? There will be no effect. Why? Because this is a transaction between business and the owner. So now frame the new equation. Your new equation is 50,000 plus cash. Liabilities, the level of liability 0 here. And your capital is increased by rupees 50,000. Hope this transaction is clear. Now see the second transaction. Second transaction is salaries paid rupees 2,000. Salaries paid rupees 2,000. Now you tell me, you are paying a salary, right? So what is going out from the business? Cash. How much? 2,000. So the level of cash is going to decrease by rupees 2,000. This point is clear now. As you are paying salary to your employees, so cash is going out from your business. So you decrease the level of cash by rupees 2,000. Now you tell me, what is the other treatment? The other treatment is all expenses belongs to owner only, right? And whatever the treatment of owner is there, that we have to do it under capital. Got the point? Now 2,000 we are going to write here in capital. Now with the level of expense, what will be the effect on capital? Capital will decrease. Correct. Capital will decrease. Now see the equation. The new equation again. 50 less 2, how much? 48,000 positive. Liability 0. Now 50 less 2, 48 positive. After every equation you have to see whether the total of both the sides are equal or not. Here plus 48 and here also plus 48. Clear. Now see the third transaction. Wages outstanding rupees 200. Wages outstanding rupees 200. Now see this. What do you mean by outstanding? Wages we all are knowing, right? Wages is what? Wages means whatever the amount business is paying to the workers, to the laborers, those who are working in a factory, that is wages. Wages is a expense, right? What is outstanding? Outstanding means due but not paid. I am giving an example. Suppose a worker worked in your factory for full month, right? So you are going to pay wages on monthly basis to your workers, right? After working for 1 month, what workers will demand? Workers will demand for a wages. But you don't have sufficient amount with yourself to pay. So what you will say to your workers? You will say to your workers that
we will pay you later. We will pay you later. That is outstanding. Already you availed the services from your workers, है ना? Services तो ले लिया, काम तो उनसे करा लिया. Now it's time you have to pay to your workers, but you don't have cash. So what you will say? That we will pay you later. अगर किसी से काम करा लिया आपने, सर्विसेज अवेल कर ली, तो उसको पैसा देना है, और अगर नहीं दिया आपने पैसा तो आप लायबल हो जाएंगे बाद में उसको पे करने के लिए. गॉट द पॉइंट? सो दिस इज अ लायबिलिटी. क्लियर? दिस इज अ लायबिलिटी. वो एक्सपेंस जिसका पेमेंट आपने नहीं किया, दैट इज अ लायबिलिटी. अब यहां देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला एक्सपेंस का अकाउंट और दूसरा लायबिलिटी का अकाउंट. क्लियर? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पैसा तो गया नहीं मेरे पास से, तो कैश तो डिक्रीज होने वाला नहीं है. चलो, एक्सपेंस जरूर है, तो एक्सपेंसेस के रीजन से आपका कैपिटल पे इफेक्ट क्या आएगा? आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन क्या ये पेमेंट कर दिया? नहीं. तो लायबिलिटी आपकी आउटस्टैंडिंग, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, O/S, आप समझ जाना, आउटस्टैंडिंग लिखा है. लायबिलिटी आपकी आउटस्टैंडिंग. अब मुझे बता दो लायबिलिटी क्या हो रही है? लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? ध्यान से सुनो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? आप बोलोगे सर लायबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि पेमेंट तो किया नहीं है, तो बाद में करने के लिए बोला है, तो लायबिलिटी इंक्रीज. चलो, सबको समझ में आया. अभी आ जाओ न्यू इक्वेशन पे. न्यू इक्वेशन बना दो जरा जल्दी से. ये यहां पर तो कोई इफेक्ट आया नहीं, तो ये तो 48,000 ही रहेगा. यहां देखो प्लस का 200 आ गया, यहां पर क्या हुआ? प्लस का 47,800 आ गया. क्लियर है? देखो अब जरा दोनों को इक्वल करके देख लो. 47,800 प्लस 200 48,000 और हियर 48,000. क्लियर? ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, ट्रांजेक्शन क्लियर. अब आ जाओ इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100. देखो अभी बता चुका हूं ड्यू बट नॉट पेड क्या होता है. अभी बता चुका हूं ड्यू बट नॉट पेड क्या होता है. आउटस्टैंडिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड. क्लियर है? तो दोबारा इसी ट्रांजेक्शन, सेम ट्रांजेक्शन, जो ये है वही ये है. ठीक है, तो दो जगह इफेक्ट, सेम वही इफेक्ट कर दो. यहां पर लायबिलिटी आपकी ₹100 से इंक्रीज हो जाएगी. इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो लायबिलिटी ₹100 से बढ़ जाएगी. इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो कैपिटल के लेवल को भी डिक्रीज कर दो. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि सेम है. जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वही हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन है, तो इसमें वही चीज दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है. चलो न्यू इक्वेशन फ्रेम कर लो फटाफट. प्लस का 48,000 यहां पर आएगा. यहां देखो कितना हो गया? 300 हो गया प्लस का, और यहां कितना हो गया? प्लस का 47,700. एक बार फिर से ऐड कर लो. 47,700 प्लस 300 48, और हियर 48. क्लियर? अब आ जाओ लास्ट ट्रांजेक्शन पे. रेंट पेड इन एडवांस ₹150. रेंट पेड इन एडवांस ₹150. 150 का रेंट आपने एडवांस में पे करके रखा हुआ है. अब सुनना बहुत ध्यान से. हम कहते हैं, देखो प्रीवियस वीडियोस में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सब कुछ समझा चुका हूं. आउटस्टैंडिंग भी समझा चुका हूं, प्रीपेड भी समझा चुका हूं. अगर और डिटेल में सुनना हो, समझना हो, तो प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देखना. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को अच्छे से देखना, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. ठीक है? चलो, तो प्रीपेड क्या होता है? पेड इन एडवांस. प्रीपेड क्या होता है? पेड इन एडवांस. आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया. ध्यान से सुनना, पेड इन एडवांस. बताओ तुम्हारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश चला गया 150, क्योंकि बोल रहा है पेड. यही रुक जाओ, पेड. जैसे उसने बोला पेड, रुक जाओ, कैश चला गया 150, डिक्रीज. अब बताओ ये क्या है? एडवांस है. ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस. अब बताओ, रेंट आपको समझ में आ रहा है, रेंट तो एक एक्सपेंस है, लेकिन क्या ये एक्सपेंस का बेनिफिट तुमने अवेल कर लिया? जो रेंट तुमने दिया, क्या उसमें तुम घर पे रह लिए, या उस बिल्डिंग में तुमने यूज कर लिया कंस्ट्रक्शन वगैरह और ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पर्पस के लिए? नहीं. इसका मतलब ये एक्सपेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसका बेनिफिट तुम अवेल कर चुके हो. यहां तो तुम बेनिफिट तुमने अवेल किया ही नहीं. बहुत ध्यान से समझना. क्लियर है ना? जिसका बेनिफिट हमने अवेल कर लिया वो एक्सपेंस है, लेकिन जिसका बेनिफिट आपने अवेल नहीं किया वो एक्सपेंस नहीं है. कैपिटल में ट्रीटमेंट नहीं करना. क्लियर है?
क्या ये लायबिलिटी है? लायबिलिटी कैसे होगा? मैं तो एडवांस में पेमेंट कर रहा हूं, तो लायबिलिटी भी नहीं है। तो क्या होगा? ये एक एसेट होगा। क्यों? क्योंकि एसेट हमेशा कहते हैं आपसे कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट प्रोवाइड होगा। तो एसेट का नाम क्या होगा? इस एसेट का नाम होगा प्रीपेड। क्या नाम होगा? प्रीपेड। और प्रीपेड का लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा 150 से। अब बताओ, अगर एसेट्स आपके सामने आ रहे हैं तो एसेट्स का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? चलो न्यू इक्वेशन बना दो फटाफट जल्दी से। 48 लेस ये कर दो, प्लस का 47,850 हो गया। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दो क्या यहां से? चलो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहां से। यहां पर प्लस का 150 हो गया, ये आपका प्लस का 300 है, और यहां पर प्लस का आपका 47,700 है। ध्यान से देख लो, सबको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, लास्ट में टोटल कर दो, जरा टोटल कर लो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया आपका? आपका आया 48,000 टोटल। ठीक है, मैं चाहूं तो इस लाइन को रब भी कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे टोटल करना है तो ये लाइन रहने देता हूं, इस लाइन को भी मैं चाहूं तो रब कर सकता हूं। देखो, इसको मैंने, ये एसेट्स का मेरा ब्लॉक है, तो मैंने टोटल में लिख दिया 48,000, और यहां पर भी इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 48,000। तो यहां पर हमारा जो पूरे इक्वेशंस हैं, पूरे इक्वेशंस इक्वल हैं, हमारी इक्वेशन प्रॉपर चल रही है। ठीक है, ध्यान से देख लो। चलो बच्चों, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 टीएस ग्रेड 1, राइट? देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज कितना है? 18,000। सब जानते हैं आपके बिजनेस में क्या आ रहा है? ओनर मैं हूं, बिजनेस आप हैं, राइट ना? ऐसे ही अजम्पशन लेके चलना है। आप अपने आप को हमेशा बिजनेस समझना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, और मुझे ओनर समझना। मैं आपको 18,000 कैश दे रहा हूं, तो आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास कैश आ रहा है 18,000। बताओ कैश का लेवल क्या होगा बिजनेस में? इंक्रीज। किसने दिया? ये ओनर ने दिया, तो उसका कैपिटल भी इंक्रीज, मतलब आपकी इंटरनल लायबिलिटी इंक्रीज। चलो न्यू इक्वेशन बना लो। ठीक है, प्लस 18,000, लायबिलिटी का लेवल 0 है, प्लस 18,000। क्लियर? सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। परचेज गुड्स ऑन कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। यही ट्रांजेक्शन है ना? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। ठीक है, चलो अब ये बता दो कितने अमाउंट का गुड्स आ रहा है, ये बता दो। आपके बिजनेस में टोटल कितने अमाउंट का गुड्स आ रहा है, ये बता दो। 5,000 का गुड्स कैश खरीदा, 2,000 का गुड्स क्रेडिट पे खरीदा। यू परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 on cash basis and 2,000 on credit basis. Total amount of goods coming into your business is of 7,000. Goods is what? Goods is stock. क्या goods assets है? हाँ, इसको बना करके ही तो हमें सेल आउट करना है, तभी तो बेनिफिट होगा, इसीलिए assets है। अब बता दो मुझे जरा, यहां एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब मुझे बताओ टोटल कितने अमाउंट का गुड्स आया? 7,000 का। क्लियर है? अब 5,000 का गुड्स तो आपने कैसे परचेज किया है? कैश। तो पेमेंट कर दिया आपने कैश में, तो 5,000 चला गया। स्टॉक आपका 7,000 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब 2,000 कैसे खरीदा है? उधार खरीदा, ऑन क्रेडिट। सो योर लाइबिलिटी, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइबिलिटी? क्रेडिटर्स। याद आ रहा है? जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है हमारे, क्रेडिटर्स का लेवल आपका 2,000 से इंक्रीज हो जाएगा, लाइबिलिटी आपकी 2,000 से इंक्रीज हो गई। क्लियर है सबको? 2,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज। देख लो अच्छे से, ध्यान से देख लो ट्रांजेक्शन को। क्लियर है? चलो अब न्यू इक्वेशन बनाएंगे।
बनाइए। 18 माइनस 5 पॉजिटिव का 13,000, ठीक है, पॉजिटिव 13,000। यहां 7,000 पॉजिटिव, क्रेडिटर्स 2,000 पॉजिटिव, यहां कुछ नहीं, पॉजिटिव का 18,000। दोनों को ऐड करो जरा, दोनों को ऐड करो। 18 प्लस 2 20, 13 प्लस 7 20। इक्वेशन इक्वल चल रही है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000, कॉस्टिंग ₹2,400। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000, कैश ₹4,000, कॉस्टिंग ₹2,400, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को समझो जरा, ध्यान से ट्रांजैक्शन को देखो। आप गुड्स को सेल आउट कर रहे हो, कितने अमाउंट का गुड्स है आपका? 2,400 का, लेकिन सेल आउट कितने में कर रहे हो? 4,000 में। ध्यान से सुनना, 2,400 का गुड्स सेल आउट कर रहे हो 4,000। अब बताओ तुम्हारे बिजनेस से क्या जा रहा है? 2,400 का गुड्स जा रहा है, गुड्स मतलब स्टॉक, 2,400 का स्टॉक जा रहा है। बताओ प्लस करो कि माइनस? जा रहा है तो क्या करेंगे? माइनस, तो माइनस कर दो। क्लियर है? अब बताओ, कैश में सेल आउट कर रहे हो तो तुम्हारे पास कितना अमाउंट आ रहा है? 4,000। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है 4,000। कितना? 4,000। अब बताओ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? कैश आ रहा है तो कैश का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब बताओ 4,000 का गुड्स, सॉरी 2,400 का गुड्स तुमने 4,000 में सेल किया तो क्या प्रॉफिट हो रहा है? हाँ, कितने अमाउंट का? 1,600 का। अब बताओ ये प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट तो ओनर के होते हैं, तो 1,600 का अमाउंट तुमको क्या करना है? कैपिटल में इंक्रीज कर देना है, कैपिटल में इंक्रीज कर देना है। सबको समझ में आ गया? चलो न्यू इक्वेशन बनाओ जरा जल्दी से। देखो जरा न्यू इक्वेशन, 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 17,000 हो जाएगा। 7,000 लेस 2,400 कितना हो जाएगा? 4,600 हो जाएगा। 4,657, ठीक है। यहां पर प्लस का 2,000 ही रहेगा और यहां देखो बढ़ जाएगा, 18 प्लस 1 19,600 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन जरा चेक करो इक्वल है कि नहीं। 19 21,600 21,600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन देखो जरा, रेंट पेड ₹1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। क्या बोल रहे हैं? रेंट पेड रुपीज कितना है? 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा? 200। अच्छा मुझे ये बता दो, रेंट पेड है 1,000 तो रेंट आउटस्टैंडिंग है 200, टोटल रेंट हो गया 1,200, ठीक है। रेंट क्या है? एक्सपेंस, ठीक है। रेंट किराया, 1,000 रुपए किराया दे दिया है, 200 रुपए किराया बचा हुआ है क्योंकि पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो बिल्डिंग, वो प्लेस तुमने यूज कर लिया है, तो एक्सपेंस टोटल कितने का है? 1,200 का। अब जल्दी से बताओ एक्सपेंसेस कहां से हम लेस करते हैं? कैपिटल में से। तो एक्सपेंसेस को लेस करना कैपिटल में से। फिर से बोल रहा हूं, एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट, लॉस, सबका ट्रीटमेंट कैपिटल में ही होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब यहां बताओ, रेंट पेड ₹1,000, तुम्हारे पास से रेंट के लिए कितना पेमेंट तुमने किया है? 1,000। तो क्या कैश चला गया? हाँ भाई, कैश तो चला गया, तो लेस 1,000 कर देना, कैश तुम्हारा चला गया। अब बताओ 200 दे दिया क्या? नहीं, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, याद है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम समझ चुके। तो 200 का पेमेंट तो करना है, अभी तो किया नहीं है, तो क्या हो गया? लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग। क्लियर है सबको? कितने से? 200 से। अब बताओ लायबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? अरे हमने पेमेंट तो किया नहीं है तो लायबिलिटी बढ़ेगी, जब पेमेंट कभी कर देंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। चलो न्यू इक्वेशन बना दो जल्दी से। देखो जरा न्यू इक्वेशन क्या हो रही है। 17 लेस 1 तो पॉजिटिव का हो गया 16,000, यहां पर पॉजिटिव का 4,600, यहां पर पॉजिटिव का 2,000, यहां पर पॉजिटिव का 200 और यहां पर लेस करना है मुझे, ठीक है।
19,400 17,400, ठीक है। कितना आएगा? 17,400 आ रहा है, 18,400 सॉरी कितना आएगा? 18,400। सब लोग देख लो ध्यान से। चलो ये नीचे वाला जो है इसको मैं रब कर देता हूं पोर्शन को, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें टोटल करना है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब हम टोटल करेंगे, करो जरा टोटल, टोटल कर दो टोटल, इन दोनों को ऐड करो, 16 + 4 20 2600 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करो 18 to 20 2600 2600 मींस दोनों साइड्स का टोटल हमारा क्या है? इक्वल। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। Welcome back, students. This is question number 5. In order to save the time, I have written all the 3 transactions of question number 5. ठीक है, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अब नाउ सी द ट्रांजेक्शन। फर्स्ट वन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। अब यहां पर ध्यान से देखो, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे हमेशा याद रखना ओनर ही बिजनेस स्टार्ट करता है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन ओनर से रिलेटेड ही होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। अब जो भी ओनर आपको पे करेगा, वो आपको कैश पे करे, वो आपको गुड्स पे करे, कुछ भी करे, ठीक है, वो सब अमाउंट उसका कैपिटल का ही कहलाएगा। क्लियर है? अब बता दो आपके पास क्या आ रहा है। आप बोलोगे हमारे पास आ रहा है कैश, आप बोलोगे हमारे पास आ रहा है स्टॉक। गुड्स मतलब स्टॉक, आप यहां पे गुड्स पे लिख सकते हैं, ठीक है। कितने रुपए का कैश आ रहा है? आप बोलोगे 1 लाख रुपीस का मेरा कैश आ रहा है और स्टॉक मेरे पास आ रहा है 20,000 का। क्लियर है? ऐसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक। चल, आपके बिजनेस में आ गया 1 लाख रुपीस का कैश, 20,000 का स्टॉक, दोनों ही आ रहे हैं तो इंक्रीज होंगे, पॉजिटिव साइन लगा देता, ठीक है। कि दोनों अमाउंट किसने दिए? ओनर ने। तो ओनर का कैपिटल भी कितने से इंक्रीज करोगे आप? 1,20,000 से। एक्सटर्नल लायबिलिटीज 0। चलो न्यू इक्वेशन बनाओ जरा जल्दी से। न्यू इक्वेशन होगी हमारी 1 लाख पॉजिटिव कैश, पॉजिटिव का स्टॉक 20,000, लाइबिलिटी का लेवल 0 एंड कैपिटल का पॉजिटिव का 1,20,000। दोनों को देख लो, 120 एंड 120 इक्वेशन इक्वल। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। 10,000 का गुड्स आपने कितने में सेल कर दिया? 12,000 में। समझ में आ गया? बताओ आपके बिजनेस से क्या जा रहा है? आप बोलोगे गुड्स जा रहा है, ठीक है। गुड्स मतलब स्टॉक, कितने अमाउंट का जा रहा है? 10,000 का। बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जब गुड्स जा रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर है? चलो, आपने कितने में सेल किया है? 12,000 में। क्या कैश आ रहा है? हाँ, कैश तो आ रहा है। कितना अमाउंट कैश आ रहा है आपके पास? 12,000 का कैश आ रहा है, ठीक है। अब बताओ कैश बढ़ेगा कि कम होगा? कैश तो बढ़ जाएगा, 12,000 से इंक्रीज, ठीक है। अब बताओ 10,000 का गुड्स जब 12,000 में सेल आउट करोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। कितने अमाउंट का प्रॉफिट होगा? 2,000 का। और हमें मालूम है प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस सब ओनर के होते हैं। प्रॉफिट होगा कैपिटल इंक्रीज, इनकम होगा कैपिटल इंक्रीज, लॉस होगा कैपिटल डिक्रीज, एक्सपेंसेस होंगे कैपिटल डिक्रीज। चलो न्यू इक्वेशन बना दीजिए फटाफट जल्दी से। कितना हो गया ये? 1,12,000 हो गया, ठीक है। यहां पर 20 लेस 10 कर दीजिए तो प्लस का 10,000 आएगा। यहां पे एक्सटर्नल लायबिलिटी 0 है क्योंकि लायबिलिटी हम लायबल हो नहीं रहे हैं। 120 + 2 कर दीजिए तो प्लस का 122 हो जाएगा। जरा दोनों इक्वेशंस देख लीजिए क्या इक्वल हैं? 1,12,000 + 10,000 1,22,000 एंड 1,22,000, दोनों इक्वेशंस हमारी इक्वल है। थर्ड ट्रांजेक्शन पे आ जाइए। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। आपको लग रहा होगा आप परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एसेट्स, हमारे लिए एसेट्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एसेट।
तो यहां पर एक नया अकाउंट ओपन कर दो, फर्नीचर। कितने अमाउंट का फर्नीचर आ रहा है तुम्हारे पास? 30,000। क्लियर है? तो बताइए फर्नीचर का लेवल क्या होगा? इंक्रीज। तो प्लस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। अब आप बताइए क्या पेमेंट कर दिया आपने फर्नीचर का? पेमेंट तो नहीं किया। कैसे पता चला? इस वर्ड्स, you are purchasing a furniture on credit. On credit, that means you promised to the seller that you will pay later. Whenever you are going to pay later, that increases your liability. Now you tell me what is the name of that liability? Name is creditors for furniture. Right? Simple creditor नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि creditors सिंपल तब लिखते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पे, लेकिन जब आप एसेट खरीदेंगे क्रेडिट पे तो आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर, ठीक है। अब बताइए आपकी लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज की डिक्रीज? सर इंक्रीज ही होनी है। क्यों? क्योंकि पैसा तो दिया नहीं है, बाद में बोल रहे देने के लिए, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं। चलिए न्यू इक्वेशन बनाइए। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। यहां पे 1,12,000, यहां पर प्लस का 10,000, फर्नीचर प्लस का 30,000, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर प्लस का 30,000, प्लस का 1,22,000। चलिए सबको ऐड कर दीजिए एक बार जरा। ऐड करके मुझे टोटल बता दीजिए कितना है टोटल। टोटल करेंगे हम। आपने टोटल किया, टोटल आया 30 plus 10, 40, 10, 50, 152. Clear? Here 122 plus 30, 152. Clear? अब देखिए इस क्वेश्चन से भी आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए क्वेश्चंस की, जिससे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि फंडामेंटल्स है। देखिए जरा, हमने फर्स्ट चैप्टर किया, हमने सेकंड चैप्टर किया, दोनों चैप्टर थियोरेटिकल, ठीक है। कई बार इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता, कई बार इंटरेस्ट बच्चे लूज करने लगते कि पूरा पूरा थियोरेटिकल हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी तो न्यूमेरिकल्स है, तो हम न्यूमेरिकल्स कब पढ़ेंगे? क्लियर है? सम ऑफ द स्टूडेंट्स मैसेज मी ऑल्सो दैट सर व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न दिस न्यूमेरिकल्स, but these two chapters, first chapter and second chapter, is very necessary in order to understand the numerical part, right? That's why I started with the fifth chapter, that is accounting equation. Your third and fourth chapter is pending, but that third and fourth chapter is not very much related with this chapter. That's why I skipped the chapter. Shortly we will cover third chapter and fourth chapter, right? So no need to worry. Clear? सब कुछ आपका अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से आपको हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो बताइएगा। थैंक यू।